Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ फ्रॉम द चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 3 dimensions. Okay, this is most important topic for you, for the students of BE, B.TECH, B.SCs, 11th 12th class students and other competitive examinations also. Okay students, इससे पहले मैं आपको चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा से कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 2 dimension एंड 3 dimension कोऑर्डिनेट सिस्टम्स मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाकर के देख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर उसी जोश, उमंग और उत्साह के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूं एक नया टॉपिक लेकर के, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 3 dimensions. ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 3 dimensions. But before starting this topic, first of all, subscribe my channel and press the bell icon ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं एस के सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3 dimensions. ओके स्टूडेंट्स, देखिए, राइट डाउन प्लीज। In a 3 dimension, rectangular coordinate system, let unit vector I, J and K. ठीक है स्टूडेंट्स, in a 3 dimensions coordinate system, rectangular coordinate system, let I, J and K be the unit vectors along x-axis, y-axis and z-axis ठीक है स्टूडेंट्स, रेस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट्स, मैं यहां पे देखिए एक फिगर ड्रॉ करता हूं। दिस इज योर वाई एक्सिस, ओके, दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर जेड। ओके, दिस इज योर जेड, दिस इज योर जेड एक्सिस, मीन्स एक्स, वाई and this is your z. Okay, and I, J and K be the unit vector of x-axis, y-axis and z-axis. This is unit vector I, okay, unit vector J, okay, and the unit vector K, okay, on the x-axis, y-axis and z-axis. Right students? तो ये हमारे पास एक प्लेन है, x-axis, y-axis, z-axis, and the unit vector I, J and K be the unit vector along the x-axis, y-axis and z-axis respectively. Okay. तो फ्रेंड्स, अब मैं यहां पे एक पॉइंट लेता हूं, let PQ vector be a vector in space where coordinates of P are x1, y1, z1, x1, y1, z1, and coordinates of Q are x2, y2 and z2. ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए, तो यहां पे एक PQ वेक्टर ले लेता हूं मैं। यहां पे दिस पॉइंट इज सपोज
P here, this point is P, okay, and this point is Q. ये स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ, this point is Q, ये PQ vector, okay, and point P, this point P is x1, यहां ले लेता हूं स्टूडेंट्स में इसको, दिस पॉइंट P is x1, y1 and z1, okay, this point P is, okay, and this point Q is x2, y2 and z2 point, right? तो स्टूडेंट्स लिखिए, let PQ vector be the vector in the space, okay, जो ये वेक्टर हमारा PQ vector is in the space and where the coordinates of P is x1, y1 and z1 and Q point is x2, y2 and z2. ठीक है स्टूडेंट्स, this point is P and its coordinate is x1, y1 and z1. देखिए स्टूडेंट्स, राइट? तो नेक्स्ट इज नाउ PQ vector is equal to, देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां से ये है मेरे पास P2 R, this point is R, okay, and PQ vector is equal to PR vector, PQ vector is equal to PR vector plus RQ vector. ठीक है स्टूडेंट्स, तो R जो है this is your PQ vector and this is your P and R vector, okay, this PQ vector is equal to PR vector plus RQ vector. देखिए स्टूडेंट्स, यहां से मैं इस लाइन को यहां से इसके साथ में मीट कर देता हूं, ये देखिए ऐसे, राइट, इन दिस स्पेस. तो आई रिपीट कि दिस लाइन PQ इज इन दिस स्पेस and here P vector is x1, y, P point is coordinates is x1, y1, z1 and Q coordinates is x2, y2 and z2, okay, and this R vector इसके parallel and this is the Q, so here PQ vector is equal to PR vector plus RQ vector. देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे, okay, and PR vector, अब जो ये PR vector है स्टूडेंट्स, देखिए ये जो PR vector है, ये क्या है, PR vector is equal to, इसको ले लेता हूं मैं, now look at here, this is your PM, देखिए स्टूडेंट्स, इसको ले लेता हूं मैं, this is your M, ये this is your M. PR vector is equal to PM vector plus PR vector is equal to PM vector plus MR vector. MR vector. This is PR vector is equal to PM vector plus MR vector. Right, students? So therefore PQ vector is equal to PM vector plus, देखिए स्टूडेंट्स, PR वेक्टर, ये PR वेक्टर आपका क्या है, PM वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका PM वेक्टर प्लस MR वेक्टर प्लस RQ वेक्टर. दिस इज 1 एंड दिस इज योर 2. तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, जो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 थी, यहां 1 में सब्स्टिट्यूट कर दी, तो PQ वेक्टर इज इक्वल टू PM वेक्टर इज इक्वल टू, दिस इज योर PM, ओके, MR एंड दिस इज RQ. देखिए ऐसे ही, ठीक है, ओके. तो नाउ PM वेक्टर इज इक्वल टू, नाउ this P and M vector is equal to x2 minus x1. देखिए स्टूडेंट्स, इस पे जो लाई करते हैं पॉइंट्स हमारे, ये x2 minus x1 यूनिट वेक्टर I, ओके, और M and R vector, this MR vector is equal to y2 minus y1 यूनिट वेक्टर J, ये जो J यूनिट वेक्टर है यहाँ पे, this is x2 minus ये y2 minus y1 unit vector J and x2 minus x1 unit vector I, and for PM vector, for this P and M vector, okay, this PM vector means this PM vector is x2 minus x1 unit vector I, and this MR vector is parallel to this point is O. Okay students, this is parallel to the OY, this is y axis, so it means MR vector is equal to y2 minus y1 unit vector J, okay, and similarly RQ vector, this RQ vector is equal to the K, it means this is equal to
Z2 माइनस Z1 यूनिट वेक्टर के। देखिए स्टूडेंट्स, ओके, ये आ जाएंगे आपके पास। सो देयरफॉर पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 यूनिट वेक्टर i, यहां पुट कर देता हूं स्टूडेंट्स, दिस इज योर 3 एंड दिस इज योर 4 पॉइंट। तो पुट ऑल दीज पॉइंट्स, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। सो x2 माइनस x1 यूनिट वेक्टर i प्लस y2 माइनस y1 यूनिट वेक्टर j प्लस z2 माइनस z1 यूनिट वेक्टर k। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो द क्वांटिटी x2 माइनस x1, ओके, कोमा y2 माइनस y1, ये जो क्वांटिटी है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये z2 माइनस z1, ये देखिए द क्वांटिटी x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1 are called the components of vectors PQ vector of vectors PQ vector along x-axis, y-axis and z-axis. Along x-axis, y-axis and z-axis respectively. Okay, so and x2 minus x1 unit vector I, comma y2 minus y1 unit vector j and z2 minus z1 unit vector k are called the component of vector PQ. देखिए, okay, so along x-axis, y-axis and z respectively, and x2 minus x1, this x2 minus x1 unit vector I, y2 minus y1 unit vector j and z2 minus z1 unit vector k are called the component of the vectors along the vectors PQ. ये देखिए स्टूडेंट्स, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 are called the, मैं यहां लिख देता हूं स्टूडेंट्स। अब जो इसके लिए हमारे जो पॉइंट्स बने वो क्या बने, x2 minus x1, ये जो पॉइंट्स हैं मैं यहां लिख देता हूं पूरा सेंटेंस, x2 minus x1, ओके, y2 minus y1, ये पॉइंट्स, ठीक है ना, ओके, यूनिट वेक्टर i, यूनिट वेक्टर j, z2 minus z1 यूनिट वेक्टर k, ठीक है स्टूडेंट्स, ये पूरा सेंटेंस मैं यहां पूरा करता हूं। तो ये क्या है, आर कॉल्ड the components of vectors of the vector PQ। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं देखिए, ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारा कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स इन 3 डायमेंशंस। ओके, तो अब हम स्टार्ट, तो ये स्टूडेंट्स, हैव यू एनी प्रॉब्लम इन द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स? ओके, तो अभी एक्चुअल में जो हम ये इस पे ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए मैं इसको अगर कंप्लीटली इसको हम ड्रॉ करें तो एक्चुअल में ये किस तरह का बनेगा स्टूडेंट्स, देखिए देखिए यहां से ये ऐसे रफली मैं इसको ड्रॉ करके आपको बता देता हूं, ये देखिए ऐसे, ये ठीक है ना, और दिस पॉइंट, दिस इज पॉइंट Q एंड दिस पॉइंट, ये देखिए इसकी जो इमेज है वो किस तरह की हमारे पास यहाँ क्रिएट हो रही है, देखिए यहां से, ये इसको मैं, ये देखिए यहां से, ये देखिए इसको मैं कंप्लीट आपको बनाकर बता देता हूं, ये देखिए ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से, और ये देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये ऐसे, एंड यहां से ये देखिए, आइए देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए, और ये देखिए स्टूडेंट्स, बन गया ना 3D। सो दिस इज दी 3 कोऑर्डिनेट कंपोनेंट ऑफ दी 3 डायमेंशंस। अब ये देखिए 3 डायमेंशन बिल्कुल यहां से, अब इसकी जो एक्यूरेट जो इमेज है वो नजर आ रही है आपको यहां से, ये देखिए, राइट फ्रेंड्स, तो यही तो हमने बनाना था। देखिए दिस इज दी 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, सो हियर दैट इज कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स इन दी
3 dimensions I, J and K on the plane x axis, y axis and the z axis. Okay, तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद हम करते हैं हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स फ्रॉम द डायमेंशंस. देखिए स्टूडेंट्स, आइए देखिए स्टूडेंट्स, अब है मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, देखिए कि वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है. द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर PQ is given by PQ vector is equal to, देखिए स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर प्लस z2 माइनस z1 इट्स होल स्क्वेयर. ये देखिए स्टूडेंट्स, PQ वेक्टर, राइट, मींस इट्स मैग्नीट्यूड ये होता है ऐसे, ठीक है ना. द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर PQ वेक्टर इज इक्वल टू, इज गिवन बाय PQ वेक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 स्क्वायर एंड प्लस z2 माइनस z1. क्योंकि आपको अभी मैंने इसका प्रूफ बताया कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इन 3 डायमेंशंस का कि PQ वेक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 यूनिट वेक्टर i, j एंड k, बट देयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ द होल स्क्वायर ऑफ द पॉइंट्स x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1. ओके, इट मींस PR, MR एंड RQ, ये तो है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स देखिए, ये PM, MR एंड RQ, these points x2 minus x1 on the x axis, y axis and the z axis. Okay, so the component I, J and K unit vector along the unit vector I, J and K. Okay, तो इसका जो हमारा जो मैग्नीट्यूड हुआ, the magnitude of the vector PQ is given by this. Okay, so in particular, if point P is 0 0 0, okay students, and point Q is, मैं point Q लेता हूं x, y and z, ठीक है स्टूडेंट्स, then in this case R vector is equal to, देखिए R vector is equal to PQ vector and this is equal to xi and this is equal to xi unit vector plus yj plus zk, ये देखिए. ओके, एंड PQ vector is equal to अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. ये देखिए स्टूडेंट्स, PQ vector is equal to x square plus y square plus z square. So where, what is R? Where R vector is the position vector of, is the position vector of the point Q, of the point Q, right students? So where R vector is the position vector of the point Q and xi unit vector plus yj plus zk. No, this point is the point Q and xi comma yj comma zk. Okay, this point, this is xi, yj and zk on this point where R vector is the position vector of the point Q and xi, yj and zk are called the vector component of R vector. Okay, so since that process is called the magnitude of the vector PQ vectors from the component of the vectors in 3 dimensions. Okay, so actual में ये हमारा PQ, so and their magnitude is this. PQ vector is equal to under root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 its whole square. Right students, is it clear? Yes, have you any problem in the magnitude of the vectors? Yes, from this side, last में, yes, okay, yes, no problem.
तो अब हम करते हैं स्टूडेंट्स कि व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन। देखिए इसी में ये हमारा कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर 3 डायमेंशन का ही पार्ट है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, डायरेक्शन कोसाइन्स, the cosine of the angle angles which the vector makes, the cosine of the angle which the vector makes with the positive direction of x-axis are known as डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, द कोसाइन ऑफ द एंगल विच द वेक्टर मेक्स द positive direction of the x-axis, this x-axis, and अभी मैं x-axis in the positive direction of the x-axis, और इसी तरह से are known as a direction cosine only on the x-axis, means the cosine, अगर स्टूडेंट्स में यहां पे देखिए look at here कि 4.4p000 point and q point is x, y and z। ठीक है स्टूडेंट्स, the direction cosine of PQ vector, the direction cosine of PQ vector are x upon r, y upon r and z upon r, where r vector is equal to PQ vector। Students, this PQ vector, this is your r vector। okay, so where r vector is equal to pq vectors। okay, तो यहां पे अब कुछ पॉइंट्स हैं, नोट करने वाले पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स। वो क्या है, चलिए कि डायरेक्शन कोसाइन के लिए राइट डाउन प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 कि इफ a वेक्टर इज इक्वल टू a1 यूनिट वेक्टर i, a2j प्लस a3 यूनिट वेक्टर k, ओके, and b vector is equal to b1 unit vector I plus b2j plus b3 unit vector k। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देन a vector plus b vector is equal to a1 plus b1 unit vector I plus a2 plus b2 unit vector j plus a3 प्लस b3 यूनिट वेक्टर k। देखिए स्टूडेंट्स, ये बनेगा यहाँ पे, दिस इज नोट नंबर 1। ओके, अगर हमारे पास दो वेक्टर है सेम ऑर्डर के कि a वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड b वेक्टर इज इक्वल टू, सो देयर एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर इज इक्वल टू द a वेक्टर प्लस b1 यूनिट वेक्टर i, j एंड k। ओके, नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 क्या है कि इफ a वेक्टर इज इक्वल टू a1 यूनिट वेक्टर i, a2j प्लस a3 यूनिट वेक्टर k, अगर ऐसा है, एंड m इज ए स्केलर क्वांटिटी, इफ m इज एनी स्केलर्स, देन ma वेक्टर इज इक्वल टू m ऑफ a1 यूनिट वेक्टर i प्लस m ऑफ a2 यूनिट वेक्टर j प्लस m ऑफ a3 यूनिट वेक्टर k। ये बनेगा हमारे पास। ओके, दिस इज नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। ओके, तो इसमें एक पॉइंट और रह गया अभी हमारे पास कि नोट नंबर 3 क्या है कि टू वेक्टर a वेक्टर एंड b वेक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, यहां लिखता हूं मैं नोट नंबर 3। तो नोट नंबर 3 इसमें क्या जाएगा कि टू वेक्टर्स a वेक्टर b वेक्टर, टू वेक्टर्स a वेक्टर इज इक्वल टू a1
unit vector I a to z plus a3 unit vector k and b vector is equal to b1 unit vector I b to z plus b3 unit vector k, then in this case they are equal if and only if their components are equal. Okay, then they are equal if and only if their components are also equal. Okay, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स. That is a vector is equal to b vector means a1 is equal to b1, a2 is equal to b2 and a3 is equal to b3. देखिए स्टूडेंट्स. ओके, सो ये 3 नोट्स थे आपके पास, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 एंड नोट नंबर 3. So with the help of these notes from the component of the vectors in the 3 dimensions, you can solve all questions from exercise. Definitely. Okay. तो फ्रेंड्स ये था आर्टिकल आपके लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, component of a vector in the 3 dimensions. Here from the magnitude of the vectors and direction cosine, जो कि आपने बहुत अच्छे से किए हैं, बहुत अच्छे से सीखे हैं. तो उम्मीद करता हूं कि आपको द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स इन 3 डायमेंशंस बहुत अच्छे समझ में आ गई है. तो स्टूडेंट्स इसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है और मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर से जरूर सोल्व करूंगा, डेफिनेटली. ओके, तो बताइए स्टूडेंट्स आपको मेरा आज का लेक्चर ऑन द टॉपिक कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द 3 डायमेंशंस कैसा लगा. प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलिए ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, थ्योरम्स, आर्टिकल्स इसी तरह कंटिन्यू लेकर के आता रहूं. तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.